Hello everyone. Today I will discuss about torque on an electric dipole in a uniform electric field. It means we have this one lines total, all the lines are uniform electric fields, because we know already about uniform electric field means all the line will be equidistant and all the lines will be straight and parallel. So this one all the lines are the uniform electric field lines. So condition is there, when a dipole placed over there, then what will be the torque? So we will find today. So now first of all we will see here one dipole, first one dipole, this one dipole is here. देखो minus charge plus charge, this one is the dipole, and this is the electric field. We know about electric field plus electric field, direction of electric field is the positive to negative, we know already. Direction of dipole moment will be negative to positive, but direction of electric field will be positive to negative. So we know here this one dipole, it's this one phase is the negative, another one phase is the positive. So force will act on there. So this side, because this is the positive and this is the positive, both will be positive, both is the positive, so it will repel to each other. So we can write here force, this one force, direction of force will be this side for this one positive charge, and in this dipole for negative charge, direction of force will be this side, because this one is the negative charge and this side is the positive. So positive and negative both will attract to each other, so direction of force will be this side, left side, and positive, this one direction will be right side. So we know about electric field. Electric field is the force per unit charge, so we can write force is equals to this one cross multiplication, F is equals to Q into E. We can write F is equals to Q into E. So this one is the force, so we can write here for positive side Q into E, this one side positive force, so QE, and this side we can write QE with negative sign because of negative charge. ये नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव लिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव लिए, सो क्यू इज द फोर्स एंड दिस वन ऑल्सो फोर्स. तो ये हो गया डाइपोल का फोर्स, एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, एक दिस साइड राइट साइड, एक दूसरा लेफ्ट साइड, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है. ठीक है. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट torque. We know this one dipole have distance is how much, you know already, 2a. This one distance will be 2a. Okay, dipole already you know, this one distance is the 2a, and we know already there will be acting force is acting opposite, and there is no translation motion, because यहाँ पे जब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि लीनियर मोशन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है लीनियर मोशन. तो यहाँ पे क्या होगा, एक इधर खींचेगा उधर खींचेगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट हो जाता है. रोटेशन, ये जो डाइपोल है इस फील्ड में क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट करेगा. इफ़ देयर विल बी रोटेशन देन वी कैन से देयर विल एक्ट ऑन ए टॉर्क. यदि वहाँ पे यहाँ पे कपल बन रहा है, कपल आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, यदि यहाँ पे कपल बन रहा है, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तो कपल बनने से क्या होगा कि इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो देखो यहाँ मेकिंग कपल ड्यू टू लाइंस, इस फील्ड लाइन के कारण यहाँ पे कपल बन रहा है. ठीक है. तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि ये रोटेट हो रहा है तो 100% यहाँ पे टॉर्क एक्ट हो रहा होगा. तो यदि यहाँ पे हमको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का हम लोग फार्मूला जानते हैं. टॉर्क क्या है, टॉर्क इज द फोर्स पर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको यहाँ पे फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये डिस्टेंस हमारा 2a है, तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको फाइंड करना है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला, दिस वन विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यहाँ से ऐसे जाओ इस तरह से, तो यहाँ पे एंगल कुछ बना रहा है, तो दिस वन एंगल विल बी थीटा. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल ही बना रहा है डाइपोल. यदि ये थीटा एंगल बना रहा है, इसका डिस्टेंस 2a है, तो हम लोग यहाँ पे दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं. इसका, इस डाइपोल का कंपोनेंट निकल जाएगा. वो कंपोनेंट क्या होगा, हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस होता है और वर्टिकल के लिए साइन होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द 2a, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 2a कॉस थीटा, एंड दिस साइड विल बी 2a साइन थीटा. तो हमको देखो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या मिल गया, 2a साइन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द 2a साइन थीटा.
जब ये मिल गया, हमको कंपोनेंट पता चल गया, फोर्स पता चल गया, डिस्टेंस सब पता है, तो जब डिस्टेंस भी पता चल गया तो हम लोग पुट कर देंगे वैल्यूज़, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई है। किसी एक फोर्स मैग्नीट्यूड को ले लो, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ही लेते हैं हम लोग, तो टॉर्क हम पहले मैग्नीट्यूड में निकाल रहे हैं फिलहाल। तो देखो टॉ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो वी कैन पुट द वैल्यू देयर। सो टॉ इज इक्वल टू क्यू ई, दिस वन इज द फोर्स, q is the force, and 2a sin theta is the perpendicular distance. This distance, this is the perpendicular distance, so we will write here 2a sin theta is the perpendicular distance. So we will write here q into 2a, इसको हम सेपरेट कर लिए, q into 2a and e sin theta, दिस इज e sin theta। टोटल यहीं से है, बस सेपरेट कर लिए, क्यों? क्योंकि इससे हमको एक कुछ कंडीशंस मिल रहा है। q into 2a इज द डाइपोल मोमेंट, वी नो ऑलरेडी p डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे तो एक डाइपोल मोमेंट लग ही रहा है, ये डाइपोल का डायरेक्शन इधर होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। डाइपोल मोमेंट हमको क्या बताता है? डाइपोल मोमेंट हमको स्ट्रेंथ बताता है कि कितना इस फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है। सो दिस वन q इंटू 2a इज ई साइन थीटा, तो यहाँ पे q इंटू 2a की जगह p रख दिए और ये हो गया ई साइन थीटा। तो टॉ इजिकल टू क्या मिल गया हमको? टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये इक्वेशन मेरा कंप्लीट हुआ, बट ये स्केलर फॉर्म में है। यदि आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहो तो क्या मिलेगा? टॉ इज इक्वल्स टू विद वेक्टर साइन, टॉ इज इक्वल्स टू, ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट दिखा रहा है हमको, पी साइन थीटा इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी कैन राइट हियर डाइपोल इज इक्वल टू पी क्रॉस सी। एक इक्वेशन ये यहाँ पे डेवलप हुआ। तो दिस वन इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमको न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा यूज ये इक्वेशन होगा। टॉ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके। और आपको यदि थ्योरी दिखाना है तो पी क्रॉस सी दिखा सकते हैं फॉर थ्योरी। अब डायरेक्शन किधर है टॉर्क का, वो हमको पता करना है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेगा। जहाँ से भी देखो, हम जानते हैं कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका परपेंडिकुलरली होता है। तो यहाँ पे टॉर्क का जो डिस्टेंस हो, टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एंड और हम जानते भी हैं टॉर्क के बारे में, आप क्लास 11th में बहुत अच्छे से रीड कर चुके हो, तो वो परपेंडिकुलर ही हमेशा इसका डिस्टेंस होता है, ये डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, ओके। सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज द परपेंडिकुलर एंड एसआई यूनिट व्हाट विल बी एसआई यूनिट? तो एसआई यूनिट विल बी मोमेंटम न्यूटन मीटर, सॉरी मोमेंटम, यहाँ पे क्या आएगा? टॉर्क, मोमेंटम का यूनिट लिखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना है। तो आप यदि इस दोनों को पुट करोगे यहाँ पे वैल्यू, तो देखो क्या कैसे यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। यूनिट विल बी पी ई साइन थीटा, मतलब पी सिर्फ ले लो, साइन थीटा को छोड़ो, दिस इज द एंगल, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो पी मिल रहा है। तो इससे क्या है कि हम इस डाइपोल को और इसका यूनिट यदि दोनों का लिखेंगे, हमको दोनों का यूनिट पता है, इसका कूलम मीटर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर न्यूटन पर कूलम होगा। यदि दोनों को कंबाइन करोगे तो तुमको रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा न्यूटन मीटर। और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर, और एनर्जी के यूनिट के बराबर ही होता है टॉर्क का यूनिट, ठीक है। तो टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, नॉट इज वर्क। वर्क का भले हमको यूनिट मिल रहा है, बट दिस इज नॉट ए वर्क, दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। सो एसआई यूनिट विल बी न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसका कुछ केसेस हैं, देखो क्या स्पेशल केस हो सकता है। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, जब ये क्या है कि ये टॉर्क जो है, यदि इसमें देखें कि थीटा एंगल भी बना रहा है, हम लोग एक मतलब जनरल फॉर्म में इसको रख दिए इस टाइप से कुछ, तो थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा यदि 0 डिग्री होता स्टार्टिंग, इफ़ थीटा विल 0 डिग्री, थीटा यदि 0 डिग्री होगा तो ये जो डाइपोल है वो इसके पैरेलल जाएगा, इसके पैरेलल रहेगा। तो यदि इसके पैरेलल डाइपोल रहेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इधर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है उस पर एक भी स्ट्राइक नहीं करेगा। यदि उस पर स्ट्राइक ही नहीं करेगा तो वहाँ पे टॉर्क होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यदि स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पे जो फोर्स है जो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, वहाँ पे फोर्स ही एक्ट नहीं होगा, बिकॉज एक भी फील्ड लाइंस उस पर ओवरलैप नहीं हो रहा है, मतलब ओवरलैप ऊपर से चला जा रहा है लेकिन उससे टच नहीं कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि एंगल भी 0 डिग्री है तो टॉर्क भी 0 है। क्यों है ऐसा? तो देखो कितना एंगल बनाएगा, यदि पैरेलल जाएगा तो थीटा एंगल 0 डिग्री बना रहा है, तो इस फार्मूला पे पुट करो, टॉ इज इक्वल्स टू वी नो पी साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करो तो क्या हो जाएगा? पी ई साइन 0, साइन 0 मीन्स 0, साइन 0 इज इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री इजकल टू 0, सो दिस वन वैल्यू विल बी 0, सो टॉर्क इजकल टू 0, ठीक है। तो यदि ये सीधा पैरेलल में रहेगा तो पैरेलल में रहने से इस पर टॉर्क एक्ट ही नहीं होगा, और टॉर्क मतलब इसके मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि टॉर्क इज 0। सो सेकंड कंडीशन इज, ये तो पहला हो गया 0 डिग्री के लिए, तो टॉर्क हमको 0 मिला, मतलब मिनिमम वैल्यूज बोल सकते हैं हम लोग। और यदि थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये जैसे ये क्या है टॉर्क है, ये रोटेट होता 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 ऐसे हो जाएगा पूरा, देखो सभी फील्ड को पूरा इस पर स्ट्राइक कर जाएगा, टोटल फील्ड विल स्ट्राइक ऑन दिस डाइपोल,
टोटल फील्ड स्ट्राइक करेगा इस पर 90 डिग्री पे जब डाइपोल होगा। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इसका जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। कैसे, वो भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पुट करके। टॉ इज इक्वल्स टू, दिस इज जनरल फार्मूला, पी साइन थीटा, पी ई साइन, और 90 यहाँ पे डिग्री कितना है 90 डिग्री, सो वी कैन राइट पी ई साइन 90 का वैल्यू होता है 1, सो दिस इज द पी के बराबर आया। दिस वन पी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। ओके, दिस पी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, मतलब जो 90 डिग्री पे होगा तो टोटल फील्ड उस पर स्ट्राइक कर रहा है, मतलब जितना एनर्जी उसको लगाना है वो टोटल उस पर लगा दे रहा है। तो 100% लोग कह सकते हैं कि उस समय जो टॉर्क होगा उसका कितना होगा, उस समय का टॉर्क जो होगा वो 100% होगा, मतलब मैक्सिमम स्पीड होगा रोटेशन का उस समय जब इसका एंगल 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट कंडीशन इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये क्या है, ये डाइपोल अभी ऐसे है, ऐसे तो 0 डिग्री पे था, ये रोटेट होगा तो कुछ इस टाइप से हो गया इतना, और 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम टॉर्क मिला इसको। अब क्या, रोटेट होते 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 ये इस टाइप से हो गया अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड हो गया तो एंटी पैरेलल हो गया। ये पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन का अपोजिट है, सिर्फ ये एंटी पैरेलल हो गया। तो एंगल कितना हो गया, थीटा इजकल टू 180 डिग्री। तुम पुट कर लो टॉ इज इक्वल्स टू पी ई साइन, और थीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं 180 डिग्री। तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स साइन 180 डिग्री इज 0, सो दिस वन पी ई इंटू 0, सो रिजल्ट क्या मिलेगा, और इसी कंडीशन में भी 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो अपोजिट है, तो इस फिर भी तो इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो इसको स्ट्राइक नहीं करेगा, इसके ऊपर से इधर से निकल जाएगा, फिर इधर से निकल जाएगा, तो इस पर स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है। जब इस पर स्ट्राइक ही नहीं करेगा तो इसका फोर्स पर मतलब टॉर्क होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देख लिए न्यूमेरिकली, मतलब यदि इसको प्रूव करके तो मतलब वैल्यू पुट करने से हमको भी रिजल्ट मिल जा रहा है इस तरह से, ठीक है। जब उसमें फील्ड स्ट्राइक ही नहीं करेगा तो टॉर्क होना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट for torque. So now we'll discuss about next topic, work done. So now next topic is work done on an electric dipole in uniform electric field। मतलब यहीं पे ऐसा ही कंडीशन में यहाँ पे यदि फोर्स हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है दोनों साइड से, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ पे थीटा हमारा चेंज हो रहा है। तो वी कैन से हियर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगुलर। ओके, तो डाइपोल जब रोटेट हो रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग मान सकते हैं कि छोटा डी थीटा मान लो, क्योंकि मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पे डायग्राम देखो छोटा सा बनाया कि ये डाइपोल है, इधर फोर्स लग रहा है इस साइड, यहाँ पे बोल सकते हैं क्यू ई, दिस साइड इज द नेगेटिव एंड दिस साइड इज द पॉजिटिव, क्यू ई पॉजिटिव साइड। इसमें भी वही उस तरह से लिख सकते हो, क्यू ई एंड दिस साइड ऑल्सो क्यू ई नेगेटिव। तो इससे क्या हुआ, देखो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में माने हैं इस पॉइंट पे एक छोटा सा एंगल जो है वो हमको उसको मान लिया थीटा 1, और ये यहाँ से इतना ही रोटेट, मतलब इस जगह पे था, मान लो स्टार्टिंग में थीटा 1 पे था। अब क्या है, वो फोर्स उस पर लगा, वो रोटेट हुआ, और रोटेट होकर कुछ इतना रोटेट हुआ तो थीटा 2 तक चला गया। तो हम बोल सकते हैं कि थीटा 1 माइनस थीटा 2, या तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 कुछ भी बोल सकते हो। तो उससे क्या मिलेगा, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, जिसको डी थीटा से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। सो डी थीटा इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट is over there, okay, so this is the small displacement। अब हम लोग क्या है, वर्क निकालना है। तो वी नो फार्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम लोग जनरल लीनियर मोशन के लिए क्या पढ़ते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर फोर्स है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स इज द एंगुलर फोर्स। सो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि वर्क इज द टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो वी कैन राइट डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क, छोटा वर्क है, तो छोटा वर्क के लिए थीटा भी देखो डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी 100% छोटा होगा। सो वी कैन एट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉट डी थीटा। ओके, अब क्या करो, वैल्यू तो हमको पहले से ही पता है उधर कि टॉ का वैल्यू क्या होता है, पी साइन थीटा, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर दिए, पी साइन थीटा, और ये डी थीटा पहले से था, तो इतना वैल्यू मिला हमको अभी छोटा वर्क। अब क्या करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने से क्या आपको फ़ायदा होगा कि हमको टोटल वर्क पता चल जाएगा कि इस पर टोटल वर्क कितना हो रहा है, कितना किस एंगल से किस एंगल तक के लिए, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब वर्क यहाँ पे देखो हम इन लोगों को इंटीग्रेट किए तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर इंटीग्रेट करने से, और एंगल देखो कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, थीटा 1 टू थीटा 2। अब डिपेंड करेगा कि थीटा तो 1 कितना है और थीटा 2 कहाँ पे। हम हो सकता है थीटा 1 की जगह 0 भी मान सकते हैं कि स्टार्टिंग में 0 था, थीटा 2 कुछ दूर तक गया होगा। तो देखो थीटा 1 टू थीटा 2 हम यहाँ पे ले लिए लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द हायर लिमिट। सो वी कैन राइट, केवल बस इंटीग्रेशन ही तो लगाना है, पी साइन थीटा डी थीटा यहाँ पे पुट कर दिए,
नाउ पी इज़ द कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम डायपोल भी वही है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, दोनों क्या हो जाएगा, बाहर निकाल दिए। कांस्टेंट वैल्यू विल बी आउटसाइड एंड दिस इज साइन थीटा डी थीटा। इसके जगह पे क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा डी थीटा, मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। सो वी कैन पुट हियर पी आउटसाइड था, यहाँ पे देखो क्या लगा दिए, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन ही होता है माइनस कॉस थीटा, तो इसका लिमिट क्या है, थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। नाउ नाउ आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन राइट दिस माइनस पी, ये माइनस देखो बाहर आ गया, तो पी कॉस, पहले थीटा 2 पुट करेंगे देन थीटा 1, तो क्या होगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस तो पहले बार कर चुके थे, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब चाहो तो इस माइनस को भी हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे, इसको पलट दो, इस थीटा 1 को पहले लिख दो, थीटा 2 को बाद में लिख दो, तो इससे क्या होगा कि इसको यदि एक्सचेंज करेंगे तो मेरा माइनस साइन कॉमन आएगा, माइनस साइन कॉमन आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो हम लोग को वर्क कितना मिला, वर्क इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सम कंडीशन ओवर देयर, हम यदि कंडीशन ऐसा डालें कि जो थीटा है स्टार्टिंग में थीटा 1 को हम मान लें कि 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब क्या, कि स्टार्टिंग में पैरेलल था, ऐसे स्टार्टिंग में पैरेलल है तो 0 डिग्री होगा। अब ये मूव करके मान लो मैक्सिमम पहुंच गया, मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री पे, तो हम मानते हैं कि थीटा 1 0 डिग्री और मैक्सिमम वैल्यू को ले लेते हैं, एक मिनिमम वैल्यू एंड अदर वन मैक्सिमम वैल्यू। थीटा 1 इज द मिनिमम वैल्यू एंड थीटा 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो थीटा 2 मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री पे होगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ से कि थीटा 2 जब 90 डिग्री पे होगा तो हमको क्या मिलेगा, पी मैक्सिमम मिलेगा, और मिनिमम कब मिलेगा, 180 पे भी मिनिमम मिल सकता है और 0 डिग्री पे भी मिनिमम मिलेगा। तो हम लोग थीटा 1 0 डिग्री ले रहे हैं और थीटा 2 क्या ले रहे हैं, थीटा 2 ले रहे हैं हम लोग थीटा के बराबर। मतलब इस पर कंडीशन है 90 डिग्री तक हम नहीं भी जाएंगे, क्या वो तो मैक्सिमम के लिए, लेकिन मैक्सिमम कुछ भी तो हो सकता है। हम मान सकते हैं कि कुछ ही दूर रोटेट किया तो वहाँ तक के लिए निकालिए, 90 डिग्री तक के लिए भी निकालने का रहेगा तो 90 डिग्री तक के लिए भी हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल्स टू हम लोग क्या मान लें, या तो ऐसा भी करो कि हम यदि मान लें कि थीटा 1 की जगह 90 डिग्री, हम मानते हैं कि मैक्सिमम से चलते हैं आगे, तो मैक्सिमम की जगह हम यहाँ 90 डिग्री लेके चलते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। स्टार्टिंग में थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब यहाँ से ऐसे ये 90 डिग्री पे है। अब यहाँ से देखते हैं इधर कितना रोटेट हो रहा है। स्टार्टिंग में हम 90 डिग्री मान के चलते हैं, थीटा मैक्सिमम वैल्यू थीटा 90 डिग्री। तो थीटा 1 पे यदि हम 90 डिग्री ले रहे हैं, मैक्सिमम वहाँ पे टॉर्क लग रहा है मैक्सिमम, तो वर्क क्या होगा, उसके पीछे दूसरा कुछ रीजन होगा। थीटा 2 क्या हमारा है, थीटा के बराबर, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब थीटा 1 90 डिग्री है, थीटा 2 थीटा के बराबर मान लिया, मतलब यहाँ कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है, 90 से ऊपर हो सकता है, 90 से नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरा एंगल, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू से हम मिनिमम तक जा रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू विल बी 90 डिग्री, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, इधर या तो इसके पहले हो सकता है, 90 से पहले हो सकता है, ठीक है। तो जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ बोल सकते हैं W इज इक्वल्स टू कॉस sin 90 is equals to what, sin 90 is equals to 1, no, and cos 90 is equals to 0. So here we can put here cos 90 degree here. तो स्टार्टिंग थीटा 1, ये थीटा 1 की जगह, इसको यहाँ थीटा 1 की जगह हम 90 पुट किए और थीटा 2 के जगह पे एक थीटा पुट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे मान चुके हैं थीटा 1 इज 90 डिग्री, थीटा 2 इज थीटा, सो वी कैन पुट हियर 90 एंड हियर थीटा। सो वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा, हाउ, ये वैल्यू क्या हो गया 0, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या बचा, हमको माइनस मिला, तो माइनस पी कॉस थीटा, W इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा हमको मिला। तो देखो ये नेगेटिव है और हम जानते हैं नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं, ठीक है। जब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं तो हम लोग मतलब इस वर्क जो है सो माइनस पी कॉस थीटा मिला और नेगेटिव में मिल रहा है, इसका मतलब 100% कह सकते हैं दिस वन वर्क जो हमको नेगेटिव में मिला माइनस पी कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस 90 पुट किए थे तो कॉस का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, जिससे हमको क्या मिला 0। तो हमको ये देखो ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ब्रैकेट है तो ये टर्म 0 हो गया, तो माइनस कॉस थीटा सिर्फ बचा यहाँ पे, तो पी ये माइनस पे यहाँ पे बाहर आ गया पी कॉस थीटा, तो W इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा हमको यहाँ पे मिला। तो माइनस है तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा। एक फार्मूला हमको पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब हम फाइंड करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टू मिनिमम। क्या कि देखो हम लोग जब कोई भी चीज़ को छोड़ते हैं, कोई भी
कोई भी चीज़ को हमको यदि लीनियर मोशन मतलब कि स्पीड देना है, तो स्पीड देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले उसमें एक एनर्जी क्रिएट करना पड़ता है। जैसे बॉल को ही खींचते हैं तो पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉइंट तक जाते हैं तभी उसको छोड़ते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि हम जब टॉर्क जो है सो मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर हम लोग मिनिमम की तरफ चलेंगे, चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव साइड राइट साइड जो एंटी क्लॉक जाए या क्लॉकवाइज जाए, तो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक जनरल फार्मूला मिल गया, u इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क इज दिस। अब डिपेंड करेगा थीटा 1 थीटा 2 कुछ भी रहे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बट यदि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला जाए तो यही फार्मूला जनरल होगा, u इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा, दिस वन, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, वी कैन राइट दिस माइनस पी डॉट ई, ये डॉट प्रोडक्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा इज द डॉट प्रोडक्ट एंड sin थीटा विल बी क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये डॉट प्रोडक्ट, तो u इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमको पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला पी cos थीटा। अब हम लोग इसका कुछ केसेस देखते हैं कि केस क्या है इसका पोटेंशियल एनर्जी का। तो कंडीशन फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, उसी तरह से थीटा इज इक्वल टू जीरो, यदि थीटा 0 डिग्री है देन हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसे देखते हैं, जैसे हम पुट करते हैं इस पर वैल्यू, u इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, माइनस पी ई, कॉस की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, कॉस थीटा मतलब 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है हमारा, माइनस पी मतलब कॉस का वैल्यू होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो कॉस 0 इतना हो गया, तो मतलब नेगेटिव ऑफ पी, मतलब ये क्या मिल रहा है हमको, पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है, वो भी कितना नेगेटिव में मिल रहा है पी, मतलब ये जो कंडीशन होगा ये मेरा स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब ऐसे होगा, ऐसा इस कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि देखो जाना हमको है एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक में रोटेट करता तो ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू आता, लेकिन ये क्या है, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, देखो 90 से 0 डिग्री ले लिए ना, तो ऐसे जाओगे तो अपोजिट जाना ही पड़ेगा, तो साइन आपका नेगेटिव तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जिधर रोटेट करना चाहिए उधर ना रोटेट करा करके अपोजिट में करा रहे हैं, इसलिए साइन क्या मिल रहा है हमको, नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा तो ऐसे कंडीशन में आ जाएगा, मतलब फील्ड का भी डायरेक्शन यही है और हमारा डायपोल का भी, डायपोल जो है सो इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये इस कंडीशन में यदि 0 डिग्री होगा उस समय ये रोटेट ही नहीं होगा, ऐसे कंडीशन में ये रोटेट नहीं होगा, लेकिन इसमें वर्क भले नहीं होगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा। बट वर्क एनर्जी दोनों बहुत डिफरेंट कंडीशंस हैं यहाँ पे। तो इस कंडीशन में देखो 0 डिग्री है, हमको मिल रहा है रिजल्ट P के बराबर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 0 डिग्री रखेंगे तो 100% हम जानते हैं कि जब डाइपोल रखा जाएगा इस तरह से, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरह से उसी के डायरेक्शन में रखा जाएगा तभी हम 0 डिग्री बोल सकते हैं। तो 0 डिग्री में जो आपको वैल्यू मिलेगा वो P मिलेगा, और नेगेटिव साइन का कारण है पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रहे हैं, उधर जाते इस एंटी क्लॉक जाते तो हमारा प्लस में रिजल्ट आता, लेकिन हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज में, इसलिए साइन क्या नेगेटिव मिला हमको पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और वैसे जानते भी हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव ही होता है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये जो है सो अभी ऐसा है तो स्टेबल है, और स्टेबल मतलब ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, मतलब ये जो है सो मूव नहीं करेगा, इस पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरह से और पास हो जाएगा डायरेक्ट, स्टेबल रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। नेक्स्ट वन, सेकंड कंडीशन इज इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। ये तो सिंपल है, u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पे कितना पुट कर रहे हैं 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये 0 तो पूरा टोटल 0 हो जाएगा, माइनस पी ई इंटू 0 रिजल्ट आ गया। मतलब इस कंडीशन में जब हमारा 90 डिग्री होगा उस समय ये स्टेबल है, मैक्सिमम वैल्यू पे स्टेबल होता है। हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टेबल एट द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, वर्क वहाँ पे मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी उस जगह पे ये होगा मैक्सिमम होगा, मतलब वर्क भी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, ये चीज़ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन है ये, मतलब इस समय हमको वर्क जब मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, ये कंडीशंस है हमारे, क्योंकि पोटेंशियल हम जानते हैं कि काइनेटिक टू पोटेंशियल ट्रांसफर होता है, कोई भी एनर्जी काइनेटिक टू पोटेंशियल और पोटेंशियल टू काइनेटिक हम लोग बोलते हैं, तो पोटेंशियल टू काइनेटिक जाता है। तो पोटेंशियल जब मैक्सिमम हमारा है किस जगह पे, 0 डिग्री पे यदि हम बोलें कि पोटेंशियल मैक्सिमम है मेरा 0 डिग्री पे, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मैक्सिमम होगा, जहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम वहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम होगा। खैर जो भी है, थीटा का वैल्यू 90 रखने पे हमको रिजल्ट क्या मिलता है पोटेंशियल एनर्जी का, 0 डिग्री मिलता है, आप यहाँ पे कंडीशंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो 90 मतलब ऐसा रखेंगे तो उस समय पोटेंशियल 0 होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगेगा, मतलब वर्क होगा मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा
मिनिमम, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। यहाँ पे जो स्पीड होगा इस जगह पे, जैसे इसे रोटेट हो रहा है इस फील्ड में, तो इस जगह पे जैसे आएगा यहाँ पे, इस समय यहाँ पे जो स्पीड होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन जब मैक्सिमम स्पीड होगा उसी समय इसका पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा, पोटेंशियल विल बी 0 एंड काइनेटिक विल बी मैक्सिमम। ये आपका क्लास 11 का कंसेप्ट है, आप क्लास 11 का बुक से काइनेटिक और पोटेंशियल से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। तो इफ पोटेंशियल विल बी 0 देन काइनेटिक विल बी मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन इज इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यदि आपका थीटा 180 डिग्री है तो इस कंडीशन में कितना आएगा, सो देख लो, u इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना रखना है, 180 रखना है, कॉस 180। अब बोलो 180 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 का वैल्यू, तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, सो वी कैन राइट माइनस पी एंड दिस वन वैल्यू इज -1, सो दिस वन माइनस माइनस प्लस, ये मिल जाएगा पी। मतलब ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ साइन होता है माइनस, तब ये ऐसे था, माइनस था तो इस तरह से था, पैरेलल था, लेकिन अब प्लस आ गया, मतलब पोटेंशियल में उल्टा दिखाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आ गया, एंटी पैरेलल आ गया। तो एंटी पैरेलल मतलब ये डाइपोल जो है इसे रोटेट करता हुआ इधर ऐसे आ गया, तो 180 तभी तो बनाएगा, 0 डिग्री में ऐसे था, मतलब डाइपोल ऐसे, इस फील्ड लाइन है ऐसे, तो इस पर पेन रख दिया ऐसे, फील्ड लाइन ऐसे ऐसे गया, ये देखो ऐसे रोटेट होता हुआ ये 90 डिग्री बनाया, और ये घुमा ऐसे करके ये कितना बना देगा, 180 डिग्री। मतलब ये जो है इस कंडीशन में अनस्टेबल होगा, मतलब फील्ड इसको धक्का देगा उस समय, ठीक है। तो मतलब इस कंडीशन में वो अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेबल मतलब कि पैरेलल लाइन, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या है, डाइपोल है। डाइपोल का भी डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन दोनों उस समय में सेम है, इसलिए हम लोग उसको स्टेबल कंडीशंस बोलते हैं। और यही चीज़ जब अपोजिट हो जाएगा कि डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में, अब डाइपोल का डायरेक्शन इधर है और फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, सो हम लोग इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं यहाँ से क्या चीज़, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे इसमें क्या चीज़, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक वर्क निकालने के लिए उसी डाइपोल के लिए, और एक हम लोग टॉर्क निकाले, दो चीज़ निकाले। तो देखो वर्क अलग चीज़ है, टॉर्क अलग चीज़ है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, आप लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं बुक से देख करके। ओके देन, थैंक यू।